God. परमेश्वर की स्तुति हो। I was wondering about these things when I read this scriptures yesterday and also before also. और इन सारे वचनों को पढ़कर इन बातों के बारे में मैं सोच रहा था। And I realized some time back that how much I am lacking in these areas. और मुझे एहसास हुआ कि इन सारे क्षेत्रों में जहाँ पर याकूब के पत्र में वचन बता रहा है मैं कितना पीछे रह चुका हूँ। Here it mentions in James chapter 3 verse 7. और याकूब 3 अध्याय वचन 7 में ऐसा लिखा है। Okay, let's go in verse 6. और याकूब 3:6 में, And the tongue is a fire, the very word of iniquity. The tongue is set among our members as that which defiles the entire body and sets on fire the course of our life and is set on fire by hell. जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। Verse 8. But no one can tame the tongue. It's a restless evil and full of deadly poison. और आगे 8वें वचन में, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। I had not realized that my tongue is a restless evil full of deadly poison. और मैंने कभी ये नहीं जाना कि मेरा भी जीभ जो है वो बला है, कभी रुकती नहीं और प्राणनाशक विष से भरी है। And it is mentioned no man can tame the tongue. और ऐसा लिखा है कि कोई भी मनुष्य जीभ को अपने वश में नहीं कर सकता। So this is a message to myself as I speak to you. It's a message to me too. और ये जो संदेश है ये मेरे लिए है और मेरे से वो बातें करती है। That I need to cry to God for the power of the Holy Spirit to overcome this tongue का problem. और इसलिए मुझे परमेश्वर को पुकार कर रोकर प्रार्थना करना है, मदद मांगनी है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए से मुझे मेरे जीभ के ऊपर मुझे वश दिला दे। It's written also in Matthew chapter 12 verse 36. We'll turn there. मत्ती के 12:36 की ओर मुड़ेंगे। And verse 33. मत्ती 12:33। Either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad, for the tree is known by its fruit. You brood of vipers, how can you, being evil, speak what is good? For the mouth speaks out of that which fills the heart. The good man brings out of his good treasure what is good, and the evil man brings out of his evil treasure what is evil. यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ जो निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह से निकलता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। So in this it mentions that, see, I cannot control my tongue all the time speaking what is right unless my heart is right with God. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हमेशा मैं अपने जीभ को नियंत्रण में नहीं ला सकता तब तक जब तक कि मेरा जो हृदय है वो परमेश्वर के साथ एक नहीं हो जाता। So in the new covenant it's mentioned that, you know, Brother Zach gives an example. In the old covenant the glass was upside down and the Holy Spirit was poured on the glass and it flowed outside. और ब्रदर जैक ने उदाहरण दिया था कि कैसे पुराने नियम में जो ग्लास है उसको उल्टा रखा हुआ है और ऊपर से जब पवित्र आत्मा उतर आता है तो ग्लास के बाहरी रीति से बहकर वो बाहरी रीति से काम कर जाता है। But in the new covenant the cup and the glass is up in the right direction and the Holy Spirit falls upon inside the glass, it cleanses it and then the clean water gushes out and blesses others. लेकिन नए करार में ऐसा होता है कि ग्लास को सीधा खड़ा रखा है और जब पवित्र आत्मा उतर आता है वो ग्लास के अंदर भीतर वो भर जाता है, अंदर पहले वो साफ सुथरा कर देता है, फिर वो जो शुद्ध पानी होता है वो बाहर की ओर निकल कर अपना कार्य करता है। So my goal, my aim in life, I am supposed to do what I am supposed to do is to seek God for Holy Spirit's grace to come upon my heart and cleanse my heart of all the evil, bitterness and everything within me, so that when I speak, I will speak words of encouragement, words of
exhortation, words of good words. तो मुझे ऐसा करना है अभी कि परमेश्वर को पुकारना है, मदद मांगना है और कहना है कि परमेश्वर मेरे हृदय में अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दे, ताकि सबसे पहले मेरे अंदर का जो पाप है पवित्र आत्मा उसे शुद्ध करे और पूरी तरह से मुझे अनुग्रह से अंदर ही अंदर भर दे। और ऐसा करने के बाद जो है अंदर से जो निकलती शब्द है मेरे मुंह से निकलती है वो अनुग्रह से भरी होगी, दया से भरी होगी, अच्छी अच्छी बातें मेरे मुंह से निकलेगी। We need to control our tongue, no doubt, but then we should not be doing good like Christian yoga. तो हमें ज़रूर निश्चय हमारे जीभ को वश में तो ज़रूर रखना है, लेकिन वो एक सबसे पहले ज़रूरी कि अंदर ही अंदर काम होना चाहिए, नहीं तो वो क्रिश्चियन योगा के समान हो जाएगा। One final verse I would like to read in Revelation chapter 12. और प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय में एक आखिरी वचन में पढ़ना चाहूँगा। This is a word of hope for us. ये हमारे लिए आशा से भरी हुई वचन है। Revelation chapter 12 verse 11. और प्रकाशित वाक्य उसका 12वें अध्याय वचन 11। And they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony, and they did not love their life even when faced with death. और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह लिया। How did the overcomers overcome the devil? By the blood of the Lamb, by the blood of Jesus Christ. और जयवंत पाए हुए लोगों ने शैतान के ऊपर कैसे जयवंत हुए? मेमने के लहू के कारण, यीशु मसीह के लहू के कारण और उसके गवाही के वचन के द्वारा। They did not love their life even unto death. That means they took up their cross every day. और उन्होंने मरने तक अपने जान को प्रिय नहीं समझा। इसका मतलब कि रोज उन्होंने अपने क्रूस को उठाया। And one good word which is written is by the word of their testimony. और एक अच्छी बात यहाँ पे लिखी है कि अपनी गवाही के वचन के कारण। So I take it as this: every time I fall into a sin which is serious or fall into a sin which I hate, I always confess the word of God to him, to God and to the devil. तो मैं ऐसा करता हूँ कि जब कभी भी मैं किसी गंभीर पाप में गिर जाता हूँ, ऐसा किसी पाप में गिर जाता हूँ जिसे मैं नफरत करता हूँ, तो मैं हमेशा परमेश्वर के वचन को लेकर शैतान से और परमेश्वर दोनों से मैं बातें करता हूँ। Every time I fall into a sin which I hate, I confess it to the devil. I believe that God still loves me just as I am. और जब मैं किसी पाप में गिर जाता हूँ तो मैं शैतान से ये बातें कहता हूँ, बोलता हूँ कि मैंने पाप किया है लेकिन परमेश्वर फिर भी मुझसे प्रेम करता है, मैं जैसा हूँ वैसे में परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। You know, these words make a lot of difference in our Christian life. हमारे मसीह जीवन में ऐसे बातें बहुत अहमियत रखती हैं। For by our words will be justified and by our words will be condemned. क्योंकि हमारे शब्दों के जरिए से हम धर्मी ठहराए जाएंगे, हमारे शब्दों ही के जरिए से हम दोषी भी ठहराए जाएंगे। So when I say this, the devil's power over me is broken. जब मैं ऐसे बातें बोलने लगता हूँ तो शैतान का जो सामर्थ मेरे ऊपर है वो टूट जाता है। I can come back to the Lord and ask for forgiveness and ask forgiveness to the person whom I have hurt, and then I can go back to the love of God. और मैं ऐसे करने से फिर मैं परमेश्वर के पास लौट आ सकता हूँ, पश्चाताप कर सकता हूँ, माफ़ी मांग सकता हूँ। जिस व्यक्ति के विरोध में मैंने कोई काम किया हो उससे भी जाकर माफ़ी मांगकर परमेश्वर के साथ फिर से एक हो सकता हूँ। Also, every time I fall short of God's glory, I confess the word of God. I say, I believe sin shall not have dominion over me, for I am not under law but under grace. Romans 6:14. और हमेशा जब भी मैं पाप में गिरकर परमेश्वर की महिमा के रहित हो जाता हूँ तो हमेशा परमेश्वर के वचन से मैं कहता हूँ कि जैसे रोमियो के 6:14 में लिखा है कि पाप मुझ पर कभी राज नहीं कर पाएगी। So let us trust God and let us confess the word of our testimony to the devil and to the angels and principalities that we believe God loves us. और इसलिए हम परमेश्वर के वचन को लेकर हमारे मुंह के गवाही के वचन से शैतान और परमेश्वर दोनों के सामने हम कबूल करें, सारे अधिकारियों के ऊपर भी हम कबूल करें वचन के जरिए से, और फिर हम जयवंत हो सकते हैं। And we cannot control our tongue on our own, but we need to receive the Holy Spirit's power to control the tongue on our inside. और हम हमारे खुद के शक्ति से या बल से जीभ को कभी भी वश में नहीं ला सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा के जरिए से हमारे अंदरूनी जीवन में और जीभ के ऊपर हम फिर नियंत्रण ला सकते हैं। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।